અને હવે ઉત્તર ગુજરાતના પ્રમુખ અને જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખો સામૂહિક રીતે તમારા સૌ વતી એમને હાર પહેરાવીને સ્વાગત કરશે. રાહુલજી તુમ આગે बढ़ो. સોનિયા ગાંધી, સરદાર પટેલ, બાબા સાહેબ આંબેડકર, રાહુલજી આપ આગે बढ़ो. આપના સૌ વતી ઉત્તર ગુજરાતના આગેવાનો, ભાઈ શ્રી રણજીત ઠાકોર, પુરીબેન પટેલ, જાકીર હુસેન ચૌહાણ, લક્ષ્મી કરણ, કાનજી દેસાઈ, પસીબેન ઠાકોર, ગોપાલસિંહ રાઠોડ, રાજેન્દ્રસિંહ કુપાવત, કમલેન્દ્રસિંહ પુવાર, રાજુભાઈ પારગી, સૂર્યસિંહ ડાબી, રામાજી ઠાકોર, ખોડાજીભાઈ દરબાર ઠાકોર અને પુષ્પાબેન ડાબી, લાલજીભાઈ દેસાઈ એમનું સંચાલન કરી રહ્યા છે. રાહુલજી આપ આગે बढ़ो. નવસર્જન ગુજરાત. હવે આપણા ઉત્તર ગુજરાતમાંથી રાહુલજીને સ્મૃતિ ચિહ્ન આપવા માટે ઠાકોર સમાજ વતી બળદેવજી ઠાકોર અને રંગાજી ઠાકોર સ્મૃતિ ચિહ્ન અર્પણ કરશે. આ દરમિયાન આપણા ગુજરાતની સંસ્કૃતિ એ ઉજાગર કરતા વિવિધ સ્મૃતિ ચિહ્નો આપ સૌ વતી અહીંયા વારાફરતી આપવામાં આવશે. આદરણીય રાહુલજી આપ સૌને સંબોધવા આવ્યા છે. આટલી જંગી મેદનીમાં આપ સૌ આવા તડકામાં પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છો. બળદેવજી ઠાકોર, રંગાજી ઠાકોર, પાટીદાર સમાજ તરફથી જીવાભાઈ પટેલ અને ડોક્ટર જીતુભાઈ પટેલ સ્મૃતિ ચિહ્ન આપવા ઉપર આવી રહ્યા છે. જીવાભાઈ પટેલ અને ડોક્ટર જીતુભાઈ પટેલ આપણા ખેડૂતોનું રાહુલજી આપ આગે बढ़ो. ઉમિયા માતાજીની મૂર્તિ સ્મૃતિ ચિહ્ન, દલિત સમાજના આગેવાન મણિભાઈ વાઘેલા અને રમેશ ચાવડા, મણિભાઈ વાઘેલા, રમેશ ચાવડા અને ત્યાર પછી ગુલાબખાન રાયમા અને વજીરખાનજી. લઘુમતી સમાજના ગુલાબખાન રાયમા અને વજીરખાન પઠાણ, આદિવાસી સમાજના અશ્વિનભાઈ કોટવાલ, કાંતિભાઈ ખરાડી, ભાઈ અશ્વિન કોટવાલ, કાંતિભાઈ ખરાડી, આદિવાસી. તાલી.
માલધારી સમાજમાંથી ગોવાઈ રબારી અને રઘુભાઈ દેસાઈ. રાહુલજી આપ આગે बढ़ो. ચૌધરી સમાજના અમિતભાઈ ચૌધરી ને રેખા ચૌધરી. અમિત ચૌધરી રેખા ચૌધરી ચૌધરી સમાજ તરફથી. રાહુલજી આપ આગે बढ़ो. હવે એનએસયુઆઈ અને યુથ કોંગ્રેસ તરફથી સ્મૃતિ ચિહ્ન ગુલાબસિંહ રાજપૂત, આદિત્યસિંહ ગોહિલ. આદરણીય વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા મુરબ્બી બાપુ શંકરસિંહજી વાઘેલાને ઉદબોધન કરવા આમંત્રણ આપું છું. આપણા વચ્ચે ખાસ દિલ્હીથી સૌને મળવા પધારેલા કોંગ્રેસ પાર્ટીના ઉપાધ્યક્ષ માન્ય રાહુલજી, ગુજરાત કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ માન્ય ભરતસિંહભાઈ, માન્ય મુકુલ વાસનિકજી, બધા આગેવાનો, આપ સૌ 2 કલાકથી રાહુલજીને જોવા સાંભળવા ઉપસ્થિત ભાઈઓ અને બહેનો. રાહુલજી અમદાવાદ ઉતરતાની સાથે ઊંઝામાં ઉમિયાના દર્શન કરવા જવું છે અને સીધા ગુજરાતમાં પગ મૂકતાની સાથે અમદાવાદથી ઊંઝામાં અને ઊંઝામાં માતાજીના ચરણોમાં આરતી ઉતારી, પૂજારીએ પ્રસાદી આપી, એમને સરસ મજાનું કવર છત્ર આપ્યું, આશીર્વાદ આપ્યા કે તમારા મનની ઈચ્છા હોય પૂરી થાય. મેં પણ માતાજીને પ્રાર્થના કરી, હે માં ઉમિયા, સાહેબના વાયદામાં ખાલી અઠવાડિયું બાકી છે. 1 જાન્યુઆરી 2017નો નવો સૂરજ ઉગશે. એ વખતે કમસે કમ દેશ અને ગુજરાતની પ્રજા કે બેંકોમાં અને એટીએમમાં લાઈનમાં ઊભી હોય એને હિંમત મળે, એના પગ થાંભલા જેવા થાય તો પણ મજબૂતાઈથી ઊભા રહે અને 50 દિવસના વાયદા પછી આ ગુલાબી ગેંગની કરેલી ગુલાબી ક્રાંતિની 2000ની નોટો, 500ની નોટોની રેલમછેલ થાય અને પ્રજા મજા કરે એવા આશીર્વાદમાં બધાને આપ આપો એવી મેં પણ પ્રાર્થના કરી. અહીં 2 મુદ્દા માટે ખાલી વાત કરીશ. આપણા મહેસાણા જિલ્લાના વડાપ્રધાન બન્યા 2.5 વર્ષ થયા. છેલ્લા 12 વર્ષથી અને ભાજપ પણ સીધા 5-7 વર્ષથી એટલે 15-20 વર્ષથી ગુજરાતમાં બીજેપીનું શાસન. દિલ્હીમાં 2.5 વર્ષ થયા. પ્રજા હિસાબ માગે. શું થયું તમારા વાયદાઓનું? શું થયું તમારા વચનોનું? આમાં 2 મુદ્દા જે લોકોની લાગણીઓ છંછેડવા માટે જે એમને કીધું છે એ કે મેં ઘરબાર છોડીને નીકળી ગયો, ખભે ઝોલો ભરાઈને નીકળી પડીશ અને વિરોધીઓ મને મારી નાખશે, મારી નાખશે. અરે તમે એવું શું પાપ કર્યું કે વિરોધીઓ તમને મારી નાખે ને મારી નાખે? કોઈ નબળું નથી તમને મારી નાખવા ને મારી નાખવા માટે. તમે કયો ત્યાગ કર્યો? તમે તો ઘરબાર જ્યારે છોડ્યું છે ત્યારે છોડ્યું, પણ મહાત્મા ગાંધીએ જીકતી પોતાની પ્રેક્ટિસ છોડી,
પોતાના શૂટબૂટ છોડ્યા, નહેરુજીએ પોતાનો વારસાગત કરોડો રૂપિયાની પ્રોપર્ટી છોડી, સરદાર સાહેબે દીકરી બેરિસ્ટરી છોડી અને ઇન્દિરાબેન ગાંધી અને રાજીવ ગાંધીએ આ દુનિયા છોડી શહીદ બની ગયા દેશ બચાવવા માટે. ઇન્દિરાજીની શહીદી, રાજીવજીની શહીદી, તમે શું કઈ શહીદી તમારી 7 પેઢીમાં એક શહીદ બન્યા હોય તો બતાવો. તમે શું કર્યું આ દેશ માટે? તમે દુનિયાને ઉલ્લુ બનાવવા સિવાય શું કર્યું? તમે ત્યાગ કર્યો. અરે ત્યાગ તો ભગવાન બુદ્ધે કરેલો, ત્યાગ તો ભગવાન મહાવીરે કરેલો. તમે કયો ત્યાગ કર્યો? અને દેશની પ્રજા ઈચ્છે કે તમે ઝોલો પહેરીને નીકળી જાઓ. અત્યારે જે હાલત છે આ દેશની, ગુજરાતમાં લગભગ 40 લાખ કરતા ભણેલા ગણેલા બેકાર, કાયદો અને વ્યવસ્થા ખાડે ગઈ. બહેનોને ઘરનું ઘર હોય, ફિક્સ પગારવાળી નોકરીનો સવાલ હોય, વીજળીનો સવાલ હોય, 4 લાખ કરતા વધારે ખેડૂતોની વીજળીનું કનેક્શન ન મળતું હોય, એવા ઠેકાણે કોંગ્રેસ પક્ષ આગામી દિવસોમાં બેકારોનો હામી બનીને બેકારને નોકરી યા બેકારી ભથ્થું, ખેડૂતને સમયબદ્ધ રીતે લાઇટ કનેક્શન મળે, અમારી બહેનોને ઘરનું ઘર મળે, ફિક્સ પગારવાળા લોકોને નિયમિત નોકરી મળે, આવા અનેક લાય જેવા મુદ્દા છે. એ મુદ્દાઓ આગામી દિવસોમાં આપ સૌના વિશ્વાસથી, આપ સૌની સાથે રહીને જો પરિવર્તનનો પેગામ જે અત્યારે હાલ દેખાઈ રહ્યો છે, એના આધારે હું કહી શકું કે આવતીકાલનો દિવસ એ આપણા માટે ઉગવાનો છે. જે મેં કીધું એમની આશા અપેક્ષાઓ પૂરી કરવા માટે ઉગવાનો છું. અને છેલ્લે રાહુલજીનો ક્રેઝ મેં જોયો ઊંઝામાં. જોવાનિયા બહેનો કલાકોથી લાઈનમાં ઉભા, રાહુલજી રાહુલજી રાહુલજી. આ રાહુલજી, આ રાહુલ ગાંધી એક બાજુ અભિમાની વ્યક્તિત્વ, બીજી બાજુ અભિમાનનું પુતળું, સહેજ પણ કોઈ જાતનો રોષ નહીં, દ્વેષ નહીં. મેં એક દિવસ પૂછ્યું એમને, રાહુલજી તમને કંઈ થાય છે આના માટે? તો કે ના. જે માણસ જે આવતીકાલનું ભવિષ્ય છે, જે લોકો મોદી હાય હાય કરે તો ના પાડે કે ના આપણા વડાપ્રધાન છે, અને એ પાર્ટીની એ માણસ, એ રાહુલ ગાંધી હોય, સોનિયા ગાંધી હોય, મનમોહન સિંહજી હોય, સોશિયલ મીડિયામાં કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને એમની ઇમેજ તોડવાનો પ્રયત્ન આ બદમાશ લોકો કરી રહ્યા છે. એ સાચી ઇમેજ તો તમારા હૃદયમાં છે, લોકોના હૃદયમાં છે. આ પબ્લિક, આ દેશની 125 કરોડની પ્રજામાં એમની ઇમેજ છે. તમારા સોશિયલ મીડિયાના ભાડુતી લોકોથી આ ઇમેજ નહીં તૂટી શકે. મેં જાતે જોયું છે દ્રશ્ય. આજે આવતીકાલનું ભવિષ્ય, મને રાહુલજી આપણા વચ્ચે આવ્યા છે. બહુ સમય આપનો લઈ લઉં. આપ સૌનો આભાર. જય હિન્દ, જય માતા. અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના મહાસચિવ, ડાબી તરફ તમે જોઈ રહ્યા છો દાંડી યાત્રાનું એક ચિત્ર. એના અમારા કન્વીનર आदरणीय मुकुल वास्तिक जी को मैं आमंत्रित करता हूं। हिंदुस्तान का भविष्य और कांग्रेस के माननीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भरत सोलंकी जी, कांग्रेस विधान मंडल के नेता शंकर सिंह वाघेला जी, मधुसूदन मिस्त्री जी, सिद्धार्थ पटेल जी, गोहिल जी, अश्विनी सिकरी जी, इरशाद भाई, अर्जुन मोडवाडिया, नरेश रावल, तुषार भाई, यहां पर उपस्थित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, गुजरात के इतिहास में लिखा जाएगा कि आज जो मेहसाना में राहुल गांधी की जो जनसभा हुई, उसने गुजरात का नए सिरे से इतिहास लिखने का काम कर दिया। दूर दूर तक जहां तक नजर पहुंचती है, वहां तक लोग ही लोग नजर आते। मैदान में ही नहीं बल्कि घरों की छतों पर लोग ही लोग। ये जो प्रेम यहां पर नजर आता है,
राहुल जी की प्रति मैं समझता हूं कि हम उसे कभी भी भुला नहीं सकते। पिछले सालों में गुजरात से एक आवाज उठी थी, हिंदुस्तान को गुमराह करने की कोशिश करी, कुछ ऐसे वादे करे कि लोग कुछ समय के लिए गुमराह हुए, लेकिन 2.5 साल में कानून का शासन नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का काम नहीं होता, संसद को चलने नहीं दिया जाता और मीडिया के ऊपर एक अंकुश लगा के रखा है। न्यायपालिका पर भी किस किस तरह की कोशिशें होती वो हिंदुस्तान की आवाम ने देखा है। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस ने पिछले सालों में कुछ नहीं किया। अरे जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपने जान की कुर्बानी दी, उनसे वो लोग पूछते हैं जिन्होंने अपने खून का एक कतरा तक नहीं दिया, वो कांग्रेस से हिसाब पूछते हैं। मैं समझता हूं अब मौका आ गया है, ठान लो, कमर कस के बांध लो। आज जो यहां से शुरुआत होगी, जो आवाज यहां से उठेगी, वो गुजरात के कोने तक पहुंचेगी। एक और आवाज होगी, राहुल गांधी जिंदाबाद, और दूसरी तरफ आवाज होगी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उठने दो ये आवाज, दूर दूर तक पहुंचने दो, बदल दो यहां का शासन और एक नई शुरुआत करके दिखा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। નવસર્જન ગુજરાતના પ્રણેતા આપણા સૌના સુકાની આદરણીય ભરતસિંહ સોલંકી ભરતભાઈ બોલે તે પહેલા 60 સાલ બેમિસાલ એનું વેબસાઇટનું લોન્ચિંગ થઈ રહ્યું છે। રોહન ગુપ્તા આઈટી સેલના ચેરમેન છે, એ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। રાહુલજી आदरणीय भरतसिंह भाई सोलंकी प्रदेश प्रमुख આપણને સંબોધન કરશે। ऑल इंडिया कांग्रेसना उपाध्यक्ष, आ देशना राष्ट्रीय नेता, लोकलाडीला, आ देशनु भविष्य एवा सन्माननीय राहुल जी, विधानसभा कांग्रेस पक्षना नेता आदरणीय शंकर सिंह जी, महामंत्री आदरणीय मुकुल जी, मधुसूदन भाई, अर्जुन भाई, सिद्धार्थ भाई, शक्ति सिंह भाई, मंच पर बैठेला सौ आगेवानों अने आटली गर्मी में तड़का में राहुल जी पर प्रेम वरसावता मारा भाईओ बहनों और युवान दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ना नेताओं,
રાહુલજીના આવવા પર બફાટ કરે જાય. કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ ડઘાઈ ગયા છે, ડરી ગયા છે. હવે એમને પણ એ વાતની પ્રતીતિ થઈ ગઈ છે કે રાહુલજી એને દેશની પ્રજા બહુ માન આપે છે, સન્માન આપે છે, ઇજ્જત આપે છે. તેમને સાંભળવા, તેમના વિચારો માટે હંમેશા તૈયાર રહે છે. સત્તાના લાલચુ ભારતીય જનતા પાર્ટીઓને એ ખબર નથી કે રાહુલજીને વડાપ્રધાન થવું હોત તો યુપીએના સરકારના સમયે डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वारंवार કહ્યું હતું કે राहुल जी आप देश के प्रधानमंत्री बनो. लेकिन राहुल जी ने यह सोचा कि मुझे यह देश की जनता के बीच जाना है, उनके दुख सुख को समझना है और महात्मा गांधी से लेके ये नए मॉडर्न इतिहास में भारत के लोगों का भविष्य कैसे उज्जवल करना है. ગાંધી પરિવાર એ બલિદાન અને ત્યાગનો પરિવાર છે. મહાત્મા ગાંધીનું ખૂન કર્યું આ ભારતીય જનતાના આરએસએસ વાળાઓએ. ઇન્દિરાજીને ગોળીઓથી વીંધી નાખ્યા. રાજીજીવે દેશની એકતા અખંડિતતા માટે બલિદાન આપ્યું. જો રાહુલજી દેશના વડાપ્રધાન હોત તો જે કાશ્મીરનો પ્રશ્ન આજે ગૂંચવાયો છે એ પ્રશ્ન ગૂંચવાવાને બદલે એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ આવ્યું હોત. ભારત પાકિસ્તાનના સંબંધોમાં પાકિસ્તાનને જબરજસ્ત ખબર પડી ગઈ હોત. ચીનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હોત અને આ દેશની આંતરિક પરિસ્થિતિ છે જે મજબૂત હોત. જાહેરાતોના રાજને બદલે, પબ્લિસિટીના રાજને બદલે નક્કર રાજ હોત કે જેમાં યુવાનોને રોજગારી, યુવાનોને કામ અને આ દેશ ખુશહાલ હોત. આ દેશમાં વરસાદ સારો પડ્યો. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વિશ્વમાં બહુ ઓછા રહ્યા. ત્યારે એ સંજોગોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના વડાપ્રધાન મોટી મોટી વાતો કરે. હું ઉત્તર ગુજરાતની ધરતીને પ્રણામ કરું છું. એ પ્રણામ એટલા માટે કરું છું કે ઉત્તર ગુજરાતના તમામ જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સફાયો કરી નાખ્યો. જ્યારે મહેસાણામાં સદભાવના સભામાં તત્કાલીન વડાપ્રધાન મુખ્યમંત્રી આવ્યા હતા, 2500 કરોડ રૂપિયાની વાત કરી હતી. મહેસાણામાં આવે એટલે એમ કે નળમાંથી તમે ક્રૂડ ઓઇલ મળશે, તમારે ખેતી કરવાની જરૂર નથી. બનાસકાંઠા જાય ત્યારે એમ કે હવે તમારો બટાકો આ મશીનમાં આ બાજુ નાખજો, બીજી બાજુથી એની કાતરીને વેફર થઈને નીકળશે. તમારો બટાકો મણના ભાવે નહીં, હવે 100 ગ્રામના ભાવે વેચાશે. સૌની યોજનાથી સૌરાષ્ટ્રના લોકોને છેતર્યા. કલ્પસર યોજનાની વાત કરી. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના તાયફાઓ કર્યા. 74 લાખ કરોડ રૂપિયાના એમઓયુ કર્યા. પણ 50 લાખ લોકોને રોજી આપવાની વાત કરનારા ભારતીય જનતા પાર્ટી વાળા લોકો આજે ગુજરાતમાં 50 લાખ બેકાર છે અને હમણાં જે પરિસ્થિતિ થઈ છે એનાથી વધારેમાં વધારે લોકો બેકાર થતા જાય છે. કડિયા, સુથાર, પ્લમ્બર, ટર્નર, ફીટર, મિકેનિક, સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. અને આ જે પૈસા છે, હમણાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત આવવાનું છે આ જાન્યુઆરી મહિનામાં. ઉદ્યોગપતિઓને, મૂડીપતિઓને બોલાવવામાં આવશે, એમઓયુ કરવામાં આવશે 30 લાખના. જે ઉદ્યોગપતિઓએ આ દેશની મોટી મોટી બેંકો, રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોની એનપીએ કરી છે, એકલા એસબીઆઈ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની 5 લાખ કરોડની એનપીએ કરી છે. જે પૈસા ગરીબ લોકોના ડૂબી ગયા છે, એ ડૂબી ગયેલા પૈસા એની ઉપર વધારાનું
આ મૂડીપતિઓને મદદ કરવાની વાત છે. ગુજરાતના સૌ સમાજના લોકો દુખી છે, મહિલાઓ દુખી છે, ફિક્સ પગારવાળા દુખી છે, કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ, આઉટસોર્સિંગ, સીઆરસી, શિક્ષણ ખાતાના લોકો દુખી છે. રાજકીય રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી ભગવાઈ ગઈ છે. વહેલી ચૂંટણી લાવવાની વાતો કરે છે, પાછા ગભરાઈ જાય છે. હમણાં સર્વે આવ્યો તો એમાં એમ કહ્યું કે 80 બેઠકો ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળશે, એટલે પાછા એમ વિચાર કરે છે કે હવે શું. બીજી મહત્વની બાબત એ કે આનંદીબેન મહિલા હતા, પાટીદાર હતા અને વડાપ્રધાનના માનીતા પણ હતા, અને તેમ છતાં એમને બદલી કાઢ્યા અને એમને બદલી કાઢીને વિજયભાઈ રૂપાણીને લઈ આવ્યા. પણ વિજયભાઈ રૂપાણીને બદલવાની વાત પણ એમની શિબિરોમાં આજે ચોરે ને ચૌટે ચર્ચાય છે. એક મુખ્યમંત્રી બદલ્યા, બીજા મુખ્યમંત્રી બદલ્યા, ત્રીજા મુખ્યમંત્રી બદલે એવી પરિસ્થિતિ છે. ત્યારે જાત જાતની જાહેરાતો કરીને લોકોને છેતરવા માટેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. મારી તો આપને એ જ વિનંતી છે કે આ સરકાર જે નાની મોટી જાહેરાતો હમણાં કરે છે, એમાં એક વધારાની જાહેરાત એ પણ કરે કે હવે તો જીએસટી આવવાનો છે, તો વેટ નાબૂદ કરી નાખે, તો પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જે 70 રૂપિયા છે એનાથી 55 રૂપિયા થઈ જાય અને લોકોને સસ્તું પેટ્રોલ અને ડીઝલ મળે, એવી પણ જાહેરાત આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કરવી જોઈએ. જે પ્રકારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ એની મનમાની ગુજરાતમાં કરાવે છે, ત્યારે મારે બહુ લાંબી વાત નથી કરવી. આપણે રાહુલજીને સાંભળવા છે. આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં આવ્યા અને રાહુલજીને માટે જે પ્રેમ દાખવ્યો એ માટે ખરા હૃદયથી અંતરથી આપને નમન કરી વંદન કરીને વિરમું છું. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. ભારત વર્ષના યુવાન આદર્શ અને ગરીબોના હામી ગુજરાતના પનોતા પુત્ર આદરણીય શ્રી રાહુલજીને આપણે સૌ સંબોધન કરવા આમંત્રણ આપીએ છીએ. આદરણીય રાહુલજી. आदरणीय राहुल जी तुम आगे बढ़ो, राहुल जी आप आगे बढ़ो. भरत भाई सोलंकी जी नमस्कार. शंकर सिंह वाघेला जी, मधुसूदन मिस्त्री जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, अर्जुन भाई मोडवाडिया जी, सिद्धार्थ पटेल जी, मुकुल वासनिक जी, अश्विनी सेकरी जी, सज्जन वर्मा जी, दीपक बाबरिया जी, परेश धनानी जी, इशरत मिश्रा जी, प्रभात अव्याद जी, कीर्ति सिंह झाला जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, छत पे जो लोग बैठे हैं, खड़े हैं और स्टेज के पीछे जो लोग हैं, आप सबका यहां बहुत बहुत दिल से स्वागत. सरदार पटेल जी की कर्मभूमि में बरदोली सत्याग्रह जहां हुई, वहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. आपने देश को दूध की क्रांति दी, व्हाइट रेवोल्यूशन दिया और आपकी मेहनत ने
मट्टी को सोना में बदल दिया है। पूरा देश दिल से आपको धन्यवाद करता है। मैं आज आपसे डिमोनेटाइजेशन के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं निर्णय लिया, इसके पीछे सोच क्या थी, लक्ष्य क्या था और इस डिसीजन का असर क्या हुआ, किन लोगों पर हुआ, वो मैं आपसे यहां कहना चाहता हूं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, हटाना चाहती है। और मैं यहां इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाया, छोटा कदम या बड़ा कदम, कांग्रेस पार्टी उनका पूरा 100% समर्थन करेगी। मगर डिमोनेटाइजेशन का जो निर्णय था, वो ना काले धन के खिलाफ था और ना भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो हिंदुस्तान के 99% ईमानदार, गरीब, मेहनती लोगों के खिलाफ निर्णय था। ढाई साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान में है और उससे पहले नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। 2.5 साल में उन्होंने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर, कमजोर लोगों पर, मिडिल क्लास के लोगों पर आक्रमण किया है। हिंदुस्तान के किसानों ने उनसे सिर्फ 3 चीजें मांगी थी: कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और अनाज के लिए, सब्जी के लिए सही दाम। 2.5 साल से मांग रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई किसान आत्महत्या करता है। पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में हर रोज किसान के परिवार डर के जीते हैं। किसानों के बच्चे डरते हैं कि वो दिन ना आए कि मेरे पिता आत्महत्या करें। उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। और नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? जो किसानों ने मांगा वो नहीं दिया और उल्टा किसान की जमीन छीनने की कोशिश करते हैं। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए, नया बिल लाए किसान की रक्षा करने के लिए, और 3 बार नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं उस बिल को खत्म करने की कोशिश की, ऑर्डिनेंस के माध्यम से, छुपकर। यह हमारे आदिवासी भाई आए हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में बीजेपी की सरकार है। आदिवासियों से वो जल, जंगल और जमीन छीनने का काम करते हैं। और कोई भी आदिवासी अपने हक के लिए खड़ा हो जाए, कोई भी आदिवासी अपनी जमीन को बचाने की कोशिश करे, अपने जल के लिए लड़े तो उसको गोली से गिरा मारते। मजदूरों का नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में हमारे सामने मजाक उड़ाया। पूरे देश के सामने उन्होंने कहा मजदूर गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का मजदूर गड्ढा नहीं खोदता है, हिंदुस्तान को बनाता है।
अपने खून पसीने से बनाता है। आपने उनसे नरेगा छीना, नरेगा का मजाक उड़ाया, और यहां गुजरात की मैं बात करता हूं, दलितों को आप यहां पे मारते हो, कुचलते हो, डर के रहते हैं वो। पाटीदारों ने शांति से, भाईचारे से अपना आंदोलन किया। उन्होंने हिंसा किसी से नहीं की, शांति से उन्होंने अपना आंदोलन किया। और आपने उनकी महिलाओं को और उनके बच्चों को मारा। आपकी सरकार ने उनकी पिटाई की, लाठियों से उनको मारा, गोलियों से उनको मारा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सच्चाई है। किसकी सरकार आपने चलाई? चुने हुए लोगों की सरकार आपने गुजरात में चलाई, और दिल्ली में भी आप चुने हुए 15-20 लोगों की सरकार चलाते हो। देश को आपने 2 भागों में बांटने का काम किया है। एक तरफ 1% अमीर लोग, और दूसरी तरफ 99% हिंदुस्तान की जनता, ईमानदार लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल क्लास के लोग। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन पकड़ा दिया है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आंकड़ा है। 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने पकड़ा दिया है। उससे भी आगे जाना चाहता हूं। 50 परिवारों को हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के साथ जहाज में ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जहाज में अमेरिका जाते हैं, चीन जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी काला धन हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोगों के पास नहीं है। काला धन इन 50 परिवारों के पास है। काला धन हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों के पास है। काला धन क्या है और कहां है? All cash is not black, and all black money is not in cash. हिंदी में सारा कैश काला धन नहीं है, और सारा काला धन कैश में नहीं है। फिर से एनडीए की सरकार का आंकड़ा, सिर्फ 6% काला धन कैश में है। सिर्फ 6% काला धन कैश में है। 94% काला धन रियल एस्टेट में है, सोने में है, हीरो में है, और विदेशी बैंक अकाउंटों में है।
1% अमीर लोगों के पास है। यह बात नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छी तरह मालूम है। आप मुझसे पूछोगे कैसे मालूम, मैं आपको बताता हूं। चुनाव से पहले 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत भाषण दिए। हर भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का काला धन विदेशी बैंक अकाउंटों में है। लाखों करोड़ रुपया लोग चोरी करके विदेश ले गए हैं। स्विट्जरलैंड में, बाकी देशों में बैंक अकाउंट में पड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि वो इस पैसे को वापस लाएंगे। हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कैश की बात नहीं की थी। नरेंद्र मोदी जी ने विदेशी बैंक अकाउंट में जो डॉलर्स हैं उसकी बात की थी। और यह सच्चाई है, ज्यादा से ज्यादा काला धन विदेशी बैंक अकाउंट में है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां कितने लोगों को अपने बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिलवाए? यहां कोई एक व्यक्ति है जो कह सकता है नरेंद्र मोदी जी ने मुझे काला धन दिलवाया, बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डलवाए? एक व्यक्ति नहीं है। दूसरा सवाल, आपने माल्या और मोदी का नाम सुना है? ललित मोदी का। वो हिंदुस्तान में है, लंदन में। वो यहां क्यों नहीं आए वापस? तीसरा सवाल, नरेंद्र मोदी जी, स्विट्जरलैंड की सरकार ने आपको स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट दे रखी है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी को सब नाम भेज रखे हैं स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स के। हम जानते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में हमने यह सवाल पूछा है और उन्होंने यह हमें बताया है। नरेंद्र मोदी जी, आपके पास वो लिस्ट है, उन चोरों के नाम आपके पास हैं। वो नाम आपने पार्लियामेंट में रखे क्यों नहीं? वो आप पार्लियामेंट में नाम क्यों नहीं रखते हो? उन लोगों को आप बचा क्यों रहे हो? आप जवाब दो हमें। डीमोनेटाइजेशन के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विजय माल्या जी को 1200 करोड़ रुपए की टॉफी खिलाई। 1200 करोड़ रुपए का उनका कर्जा माफ किया। आप हमें बताइए, इस चोर का आपने पैसा क्यों माफ किया? लोग सवाल पूछने लगे। जहां भी मैं जाता था, लोग कहते थे भैया नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। मुझे पकड़ के कहते थे राहुल जी, मेरा 15 लाख रुपए कब आएगा? मेरा 15 लाख रुपए कब आएगा? नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला, पूरे हिंदुस्तान का बेवकूफ बना दिया। लोगों के दिल में यह आवाज उठने लगी। नरेंद्र मोदी जी को घबराहट हुई और उन्होंने एक नया ड्रामा शुरू किया, एक नया इवेंट, मेगा इवेंट, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्शन, काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक। सिर्फ 6% काले धन पे, पता नहीं क्या कारण था, मगर मोदी जी ने अपना निशाना 94% काले धन पे नहीं लगाया।
पता नहीं क्या कारण था, 6% काले धन पे निशाना लगाया। नरेंद्र मोदी जी ने 1% हिंदुस्तान के अमीर लोगों पर निशाना नहीं लगाया, 99% हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों पर निशाना लगाया। नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना उन 50 परिवारों पर नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भ्रष्टाचार की लड़ाई हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास के लोगों पर करी। दूसरे महायुद्ध में बम गिराने का एक नया तरीका निकाला गया था। इसे फायर बॉम्बिंग कहा जाता था। 300-400 जहाज ऊपर से आते थे, आग वाले बम लेकर आते थे और 20-25 मिनट में बम गिरा देते थे ऊपर से। शहर का शहर मिनटों में जल जाता था, खत्म हो जाता था। रोटरडैम को, टोक्यो को, ड्रेसडन को ऐसे जलाया। 8 बजे रात को होती थी फायर बॉम्बिंग, 8 बजे रात को। टोक्यो की फायर बॉम्बिंग में हिरोशिमा से ज्यादा लोग मारे गए थे। जो काम एटम बम नहीं कर पाया, वो काम फायर बॉम्बिंग ने टोक्यो में कर दिखाया था। नरेंद्र मोदी जी, आपने ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, आपने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर, कमजोर लोगों पर फायर बॉम्बिंग की है। फायर बॉम्बिंग, आग की बॉम्बिंग। और चोट किसको लगी? ये जो हमारी महिलाएं बैठी हैं, इन्होंने जो पैसा बचाया था अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, उस पैसे को आपने जलाया नरेंद्र मोदी जी। इनके पैसे को आपने जलाया, इनके भविष्य को आपने जलाया। किसान जब बीज खरीदता है, जब खाद खरीदता है, वो चेकबुक से नहीं खरीदता है, वो कैश से खरीदता है, कैश से। आपने उसके हाथ से उसके पसीने का पैसा खींचा और उसको जलाया। जब मजदूर काम करता है, दिन भर अपना पसीना देता है, मोदी जी, उसे डेबिट कार्ड में पैसा नहीं मिलता, उसे कैश में पैसा मिलता है, कैश में। उसके कैश को आपने जलाया। आपने विकास की बात की, रोजगार देने की बात की। आपने कहा था नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो पूरे देश को साल में 2 करोड़ रोजगार दिलवा के दिखाएंगे। हमने पार्लियामेंट में पूछा और आपने बताया, एनडीए के मंत्री ने बताया कि 7 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। आज आपके डिमोनेटाइजेशन ने, आपके फायर बॉम्बिंग ने गुजरात में कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को खत्म किया, इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री को खत्म किया, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को खत्म किया, पावरलूम की इंडस्ट्री को खत्म किया, हीरो की इंडस्ट्री को खत्म किया, ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री को खत्म किया। और जो सफेद दूध की क्रांति लाई थी, गुजरात की महिलाएं लाई थी, उस पर आपकी नोटबंदी ने चोट मारी। मोदी जी, आप यहां आए थे, आप यहां आए थे और आपने भाषण किया और आपने कहा कि गेनाभाई पटेल जी ने इतने बड़े बड़े अनार पैदा किए। मोदी जी, नोटबंदी से पहले गेनाभाई पटेल जी के अनार
120 रुपए प्रति किलो में बिकते थे। आपकी फायर बॉम्बिंग के बाद 35 रुपए किलो बिक रहे हैं, 35 रुपए किलो। खैर, आपने ये फायर बॉम्बिंग की, इसका कोई ना कोई लक्ष्य तो होगा। आपने जो किया, इसके पीछे कोई सोच होगी। मैं आपको यहां इस मीटिंग में फायर बॉम्बिंग के पीछे सोच के बारे में बताना चाहता हूं। किसान या मिडिल क्लास का व्यक्ति अगर बैंक से लोन लेता है और पैसा वापस नहीं देता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, उससे उसकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती है, उसका घर छीन लिया जाता है। मगर अगर हिंदुस्तान के 1% अमीर लोग बैंक से लाखों करोड़ रुपया लें और वो पैसा वापस ना दें तो उन्हें चोर नहीं कहा जाता है, उन्हें डिफॉल्टर कहा जाता है, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। इन 50 परिवारों ने, इन 1% अमीर लोगों ने हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक से लाखों करोड़ रुपया लोन लिया और आज बैंक का 8 लाख करोड़ रुपया, 8 लाख करोड़ रुपया उन्होंने ले रखा है और वो वापस नहीं दे रहे हैं। 8 लाख करोड़ रुपया मतलब 35,000 करोड़ रुपए का नरेगा चलता है एक साल का। आप अंदाज लगा दो 8 लाख करोड़ रुपया कितना होता है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये 8 लाख रुपया इनका कर्जा माफ हो। बैंक बंद पड़े हुए हैं। इस 8 लाख करोड़ रुपए के कारण बैंक लोन नहीं दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी को इन लोगों से 8 लाख करोड़ रुपए लेना चाहिए, मगर नहीं ले सकते हैं क्योंकि इन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को बनाया, इन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग की, इन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो नरेंद्र मोदी जी इनसे पैसा नहीं ले सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक नया तरीका निकाला, बैंक को चालू करने का, 8 लाख करोड़ रुपए को माफ करने का एक नया तरीका, डीमोनेटाइजेशन। गरीबों से उनका पैसा लो और उस पैसे को बैंक में फंसाओ। 6-7 महीने उस पैसे को बैंक में फंसाओ और गरीबों के पैसे के बल पर 8 लाख करोड़ रुपए माफ करवाओ। यह है नोटबंदी का सच्चा लक्ष्य। अब आप कहोगे इसका सबूत दो, मैं आपको देता हूं। किसान ने नरेंद्र मोदी जी से कर्जा माफ करने की मांग करी। हमने 70,000 करोड़ रुपया माफ किया था। एक महीना मैंने यूपी में दौरा किया किसानों के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने उनका कर्जा माफ नहीं किया, मगर पिछले 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 15 उद्योगपतियों का 1,40,000 करोड़ रुपया माफ किया है, कर्जा माफ किया है। डिमोनेटाइजेशन का लक्ष्य गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। 99% ईमानदार लोगों से पैसा खींचो, 1% अमीर लोगों को, 50 परिवारों को सींचो।
यह है लक्ष्य नोटबंदी का। राजनाथ सिंह जी खड़े हुए पार्लियामेंट में कहते हैं पॉलिसी अच्छी थी। मैंने आपको भी दिखाया कि पॉलिसी किसान, गरीब, मिडिल क्लास के विरोध थी, 50 परिवारों की और 1% अमीर लोगों के लिए की मदद करने की पॉलिसी थी। राजनाथ सिंह जी, आप नरेंद्र मोदी जी को समझे नहीं। कुछ समय पहले वाघेला जी मेरे पास आए थे। मैं काफी खुश हूं कि यहां आज बैठे हैं। मैंने उनसे पूछा, वाघेला जी आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मुझे बताइए। हंस रहे देखिए। और इन्होंने मुझे बोला, राहुल, नरेंद्र मोदी जी मेगा इवेंट मास्टर है। वो किसी चीज का भी इवेंट बना सकता है। मगर एक बात मैं आपको बताता हूं, जब वो इवेंट बनाता है तो उसकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होती है। उसकी प्लानिंग बहुत बढ़िया होती है। अब सुनिए, मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूं। नोटबंदी का लक्ष्य गरीबों का पैसा ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में रहे, कि उसके बल पर हम 50 परिवारों का कर्जा माफ कर सकें। अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर 2000 रुपए का नोट एटीएम में चलता तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। अगर आपके ऊपर 24,000 रुपए की विड्रॉल लिमिट नहीं लगती तो आपका पैसा बैंक में रहता? अगर 100 बार नियम नहीं बदलते आपका पैसा बैंक में रहता? और अगर समय पे 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट प्रिंट होते तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग का लक्ष्य यह था कि ज्यादा से ज्यादा समय आपका पैसा, आपके खून पसीने का पैसा, आपके जेब से निकाला हुआ पैसा, आपके घरों से छीना हुआ पैसा बैंक में 6-7 महीने के लिए रहे कि वो इन लोगों का कर्जा माफ कर सके। यह है नोटबंदी की सच्चाई। शुरुआत की नरेंद्र मोदी जी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, और उन्होंने कहा देखो 14.5 लाख रुपए 1000 और 500 के नोट में है। बहुत सारा काला धन वापस नहीं आएगा, और जो काला धन वापस नहीं आएगा वो नरेंद्र मोदी गरीबों को देगा। यह नरेंद्र मोदी जी ने कहा। 1 महीने में पता लग गया कि सारा का सारा काला धन वापस आ गया। नरेंद्र मोदी जी के डिमोनेटाइजेशन ने हिंदुस्तान के सब चोरों के पैसे को काले धन से सफेद में बदल दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने काले धन की बात बंद कर दी। काला धन के बारे में भूल गए और कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया। बहुत बढ़िया बात। 2 दिन बाद हमारे वीर सिपाही आतंकवादियों को मारते हैं।
आतंकवादियों के जेब में से 2000 का चमकता हुआ नया नोट, एक गड्डी इस साइड, दूसरी गड्डी इस साइड। नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद की बात बंद कर दी, उधर से दौड़ के निकले नकली नोट के पीछे। भैया, नकली नोटों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। हमने राज्यसभा में हमारे लोगों ने सवाल पूछा, बताइए, उनके मंत्री से पूछा, बताइए हिंदुस्तान में नकली नोट कितने हैं, काउंटरफिट नोट कितने हैं? 100 रुपए में से कितने नकली हैं? उनका जवाब आता है, पार्लियामेंट राज्यसभा में 100 रुपए में से 2 पैसे नकली हैं। पूरे हिंदुस्तान में 400 करोड़ रुपए नकली हैं। मोदी जी उधर से दौड़े निकले, कैशलेस इकोनॉमी की ओर गए। चलो भैया, कैशलेस की बात करते हैं। कैशलेस की ओर भागो, चलो। ब्लैक मनी से भागो आतंकवाद की ओर, आतंकवाद से भागो नकली नोट की ओर, नकली नोट से न भागो कैशलेस इकोनॉमी की ओर। मोदी जी, हिंदुस्तान की 99% जनता को तो आपने कैशलेस बना ही दिया। उनके कैश को तो आपने जला दिया, हंसते हुए जलाया, हंसते हुए। पॉप कॉन्सर्ट में कहते हैं, मैंने 1000 रुपए और 500 रुपए का नोट रद्दी कर दिया, कागज बना दिया। करोड़ों लोगों पर फायर बॉम्बिंग की चोट मारी और हंसी आ रही है आपको। कैशलेस इकोनॉमी के बारे में आपको बताता हूं। आज अगर आप किसी दुकान में जाएं, कुछ खरीदें, ठीक है, खैर आज तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि आज तो आपके पास कैश ही नहीं है, मगर अगर आप डिमोनेटाइजेशन से पहले जाते, जेब से 100 रुपए निकालते, किसी दुकानदार को देते, तो आपका 100 रुपए दुकानदार को जाता। मोदी जी की कैशलेस दुनिया में आप अपना 100 रुपए निकालोगे फोन पे और दुकानदार को दोगे, बीच में से 5% कमीशन उन्हीं 1% अमीर लोगों को, उन्हीं 50 परिवारों को मिलेगा। यह है नरेंद्र मोदी जी की कैशलेस इकोनॉमी, कि आपके खून पसीने के पैसे में से भी कहीं ना कहीं 5-6% कमीशन निकाल के उनको कैसे दूं। अब नरेंद्र मोदी जी, आप कैशलेस से, आप काले धन से नकली पैसे पे गए, नकली नोटों पे गए, नकली नोटों से आप आतंकवाद पे गए, आतंकवाद से आप कैशलेस पे गए। आपने मुझे पार्लियामेंट हाउस में बोलने नहीं दिया। आप, जैसे मैंने अभी भाषण दिया, जैसे ये लोग यहां खड़े हैं पार्लियामेंट में, आप मेरे सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे। पता नहीं क्या कारण था। पता नहीं क्या कारण था। मैं आपको बताता हूं। कोई भी बिजनेस चलाता है, दुकानदार छोटी सी दुकान चलाता है, बड़ी कंपनी चलाता है,
वो अपना रिकॉर्ड रखता है। सही बात है ना? वो रखता है कि कितना पैसा हमने किसको दिया, किसको उधार किया, किससे हमने पैसा लिया, किसको हमने पैसा दिया। 22 नवंबर 2014 सहारा कंपनी पर एक रेड हुई। बहुत बड़ी कंपनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर रेड की। वहां उनको सहारा के रिकॉर्ड मिले। सहारा के रिकॉर्ड में जो लिखा था मैं आपको बताता हूं। एंट्रियां थी रिकॉर्ड में। 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। यह सब रिकॉर्ड में है। इनकम टैक्स के पास यह रिकॉर्ड है। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 19 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 13 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 28 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 22 फरवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी, आप 2-3 चीजें मुझे बताइए। ये जो रिकॉर्ड है सहारा का 2.5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। इस कागज पे इनकम टैक्स लोगों के दस्तखत हैं। इनकम टैक्स लोगों ने कहा है इन कागजों पे इंक्वायरी होनी चाहिए। 2.5 साल से इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? और ये जो 9 बार ये कह रहे हैं कि आपको पैसा दिया गया है, क्या ये सच है या झूठ है? आप देश को बताइए। आपने पूरे देश को लाइन में रखा। आपने पूरे देश से उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया, उनकी कमाई पर सवाल उठाया। अब मैं देश की ओर से पूछ रहा हूं, इन महिलाओं की ओर से पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान के किसानों से ओर से पूछ रहा हूं, क्या ये इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो इस पे इंक्वायरी कब होगी? दूसरी बात, यहां खत्म नहीं होता है। यहां खत्म नहीं होता है, अभी और है, अभी और है। एक सेकेंड। ऐसा ही एक कंप्यूटर रिकॉर्ड बिरला कंपनी का, उसमें साफ लिखा हुआ है गुजरात सीएम
25 करोड़ 12 करोड़ हो गए, बाकी क्वेश्चन मार्क। नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिग्नेचर इन कागजों पे हैं, वो हम आपको दिखा देंगे, पूरी दुनिया को दिखा देंगे। अब आप देश को बताओ, स्वयं बताओ कि ये सच है या नहीं। और एक आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इस मामले पे करवाओ, पता लगाया जाए कि इस डायरी में जो लिखा है, इस रिकॉर्ड में जो है, ये सच है या नहीं। ये हमारे प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहा है और इसका जवाब मिलना चाहिए। आप सब यहां आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे मैं चर्चा कर पाया, आपने इतना प्यार दिखाया मुझे। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના આપણા સૌના આદરણીય ગુજરાતના પનોતા પૌત્ર, હિન્દુસ્તાનનું ભવિષ્ય, યુવાનોના મહિષા એવા આદરણીય રાહુલજી પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના આમંત્રણને માન આપીને પધાર્યા। ગુજરાતની અને ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતની પ્રજાની લાગણીને માન આપીને પધાર્યા, એટલા માટે આપ સૌ વતી આ રાહુલજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। સાથે સાથે પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિએ ગુજરાતમાં મહેસાણાને પસંદ કરીને રાહુલજીની સભાનું આયોજન કર્યું, એમનો ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસનો પણ એટલો જ આભાર માનું છું। અને ખાસ કરીને વિશેષ આભાર માનું છું ગુજરાતની પ્રજા અને ઉત્તર ગુજરાતની પ્રજાનો કે જેણે ટૂંકમાં આટલો મોટી સફળ સભા બનાવી। જય હિન્દ, જય ભારત।